بلیٹن میں خوش آمدید اور اب آپ کو بتائیں کہ رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا آغاز کل پہلا روزہ کراچی میں مختلف مقامات پر نماز تراویح کی ادائیگی سحری اور افطاری کے لیے بازاروں میں خریداروں کا رش شہری سحری اور افطاری کے لیے سامان خریدنے میں مصروف دودھ دہی پھل اور مشروبات کی مانگ میں اضافہ سموسہ رول پٹی دالیں گوشت اور خشک مسالہ جات کی بھی خریداری سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں بمپر ٹو بمپر ٹریفک جام اپڈیٹ کریں رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا آغاز ہو گیا کل پہلا روزہ کراچی میں مختلف مقامات پر نماز تراویح کی ادائیگی سحری اور افطاری کے لیے بازاروں میں خریداروں کا رش شہری سحری اور افطاری کے لیے سامان خریدنے میں مصروف دودھ دہی پھل اور مشروبات کی مانگ میں اضافہ سموسہ رول پٹی دالیں گوشت اور خشک مسالہ جات کی بھی خریداری سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں بمپر ٹو بمپر ٹریفک جام حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج کا اعلان کر دیا وفاقی صنعت اور پیداوار کی جانب سے 800 سے زائد اشیاء کی قیمتوں پر 15% رعایت کر دی یوٹیلیٹی سٹورز پر بیشتر اشیاء غائب ہونے سے شہری پریشان ہو گئے تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج کا اعلان حکومتی پیکج شہریوں کے لیے سراب بن گیا یوٹیلیٹی سٹورز کئی ماہ سے گھی اور کوکنگ آئل کے شیلف خالی گزشتہ سال اگست سے سستے آٹے کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری نہیں کمپنی کا آٹا بھی 2 ماہ سے غائب شہری بولے مہنگائی کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہیں حکومت کو چاہیے رمضان کے دوران تمام اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنائے کچھ جو ہے کچھ بھی نہیں بھی ہے وہ بھی تو پیسے سے مل گئی نا مفت میں تو نہیں دے گا نا غریب بندوں کدھر جائے گا ابھی جو غریب بندے کے نا مہنگائی نا کمر ٹوٹ گئی سر وزیر اعلیٰ کو ہم کہنا چاہ رہے ہیں تو مہنگائی ختم کرے اور غریبوں کو کوئی پیکج دیں بس میں یہ کہہ سکتا ہوں سر کہ جو کمی ہے اس وقت اس کمی کو جو ہمارے یہاں کے ہیڈ ہیں پورے اس کو پورا کرنا چاہیے یعنی کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے اپنے طرف سے ان کو بالفور کوشش کرنی چاہیے اب یہ عوام کیا کرے گی بجائے بھوکا مرے گی پھل فروٹ جو ایک چھوٹا سا کینو تھا 200 روپے درجن دے رہا تھا اب وہ 450 روپے درجن دے رہا ہے کیلا 280 روپے درجن ہو گیا اچھا والا اور بالکل خراب کیلا جو جانور کو اللہ معاف کرے کھلاتے ہیں بکروں کو کھلاتے ہیں وہ 150 روپے ہو گیا وفاقی وزارت صنعت و پیداوار اور پاکستان یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی جانب سے اعلان کردہ رمضان پیکج میں یوٹیلیٹی سٹورز پر 800 اشیاء کی قیمتوں پر 15% رعایت دی جا رہی ہے رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی کھجور کی فروخت میں اضافہ ہو گیا شہری کھجور کی خریداری کے لیے بازار پہنچ گئے پنجگور ایران سعودی عرب اور عراق کی مختلف اقسام کی کھجوریں دستیاب ہیں کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے خریداری کھجور سے کریں گے شہری کھجور کی خریداری کے لیے بازار پہنچ گئے کھجور بازار میں فروخت بڑھ گئی دکانوں پر رش لگ گیا سکھر کی اصیل کھجور 9,500 روپے من عراق کی بصرہ کھجور 12,000 روپے ایرانی اجوا 14,000 سعودی امبر کھجور 35,000 اور پنجگور کی مضافاتی کھجور 550 روپے کلو تک ہول سیل میں فروخت ہو رہی ہے کھجور مرچنٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری حنیف بلوچ نے کہا کہ سکھر کی کھجوروں کی فصل کافی خراب ہو گئی تھی بہت کم مال آیا ہے مارکیٹ کے ہول سیل ریٹ گزشتہ سال والے تبدیل نہیں ہوئے ہیں البتہ ٹھیلے پتھارے والے کھجوروں کی قیمت دگنی کر کے فروخت کرتے ہیں مختلف اقسام کی کھجوریں وافر مقدار میں دستیاب ہیں مگر فصل خراب ہونے سے سکھر کی اصیل کھجور بہت کم آئی ہے دیکھو کھجور کی قیمتیں جو ہے پچھلے سال کی طرح برقرار ہیں بڑی نہیں ہیں لیکن کھجور وافر مقدار میں موجود ہیں ریٹیلر جو ہے نا وہ کہیں جا کر کہیں خود اپنی مرضی سے بیچتا ہے تو ہم نہیں کرتے ہول سیل مارکیٹ چڑھی نہیں ہے وہی اسی طرح قیمت ہے شکر کی کجی شارٹ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے شکر جو ہے نا بہت پٹ گیا ہے آئی نہیں ہے آئی بھی ہے اس کو پانی لگی ہوئی ہے لیکن زیادہ نہیں بکتی خریدار بولے کھجور نہ صرف روزے کے دوران افطار کے لیے بہترین ہوتی ہے بلکہ اس میں توانائی اور غذائیت بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مہنگی ہونے کے باوجود بھی خریدنی پڑتی ہے ابھی جیسے کہ جو کھجور عام دنوں میں 400 میں رہی وہ ابھی 800 میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو رمضان کی وجہ سے بہت مہنگے دے رہے ہیں کھجور ٹھیک ہے تو غریب بندہ جو ہے اس کے بس کی بات تو ہے نہیں خریدنا یہاں پر سکری ہے مبروم ہے اجوا ہے امبر ہے یہ بہت ساری جو سینسیٹیو بہت مہنگی کھجوریں ہیں یہاں پر ابھی مہنگی ہے مگر کیا کریں لینی تو پڑتی ہے آدمی رمضان قریب ہے بالکل 3 4 5 دن رہ گئے جتنے بھی دن رہ گئے مگر کھجور کے بغیر روزہ نہیں کھولا جا سکتا
माह रमजान की तैयारियों के साथ ही खजूरों की खरीदारी का सिलसिला तेज हो गया है। इस साल भी खजूरों की मुख्तलिफ इक़साम की दस्तयाबी ने खरीदारों के लिए इंतखाब की आज़ादी को मजीद बढ़ा दिया। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही खजूर बाज़ार की रौनकों में तो इजाफा हो गया है, लेकिन यहाँ पर आने वाले शहरी महंगाई का रोना रोते हुए दिखाई देते हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में ज़मीनों पर कब्जे का एक और स्कैंडल, चाइना कटिंग के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड कटिंग का इंकिशाफ हो गया। महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। फरियाल तालपुर समेत 19 अफराद के घरों और दीगर जायदाद के रिकॉर्ड में 2 नंबरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट में देखिए। जमीन पर कब्जा, रिकॉर्ड में रद्दोबदल और सरकारी अफसरान की मिली भगत। चाइना कटिंग के बाद कराची में रेवेन्यू रिकॉर्ड कटिंग स्कैंडल सामने आ गया। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आला अफसरान की मुबैना मिली भगत से सरकारी जमीनों और निजी इमलाक के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेर फेर का इंकिशाफ हुआ है। स्कैंडल सामने आते ही महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। तहकीकात के दौरान कई तहलका खेज इंकिशाफात सामने आ गए। वजीर आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम की सिफारिश पर महकमा एंटी करप्शन ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपनी तहकीकात के दायरे में ले लिया है। इंक्वायरी टीम के सेक्रेटरी शाहमीर खान भुट्टो की जानिब से तहरीर करदा खत में इंकशाफ किया गया है कि कराची में मुतादिद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स के रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया, जिसके जरिए बाअसर शख्सियात और अफसरान को फायदा पहुँचाया गया। एंटी करप्शन हुक्काम ने तहकीकात के दौरान मालूम किया कि कई शहरियों की जायदादें गैर कानूनी तरीके से दूसरे अफराद के नाम मुंतकिल कर दी गईं, जबकि बाद सरकारी अफसरान ने अपनी ही ज़मीनों को भी महफूज बनाने के लिए जालसाजी की। महकमा एंटी करप्शन की इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मेगा करप्शन केस का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जो सरकार की मुद्दत में असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन जाहिद हुसैन मिरानी की जानिब से दर्ज कराया गया। मुकदमे में महकमा रेवेन्यू के 9 अफसरान को नामजद किया गया है, जिनमें से 3 को कानून की गिरफ्त में ले लिया गया है, जबकि 6 अफसरान रूपोश हो चुके हैं। गिरफ्तार होने वाले अफसरान में साबिक डायरेक्टर ASR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद चन्ना, साबिक सब रजिस्ट्रार जमशेद टाउन जुल्फ़िकार अली और क्लर्क मुख्तार शामिल हैं। तीनों मुल्जिमान इस वक्त जुडिशल रिमांड पर प्रेडी थाने की लॉकअप में मौजूद हैं, जबकि दीगर 6 मुल्जिमान ने राह फरार इख्तियार कर ली है। तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ भी हुआ कि इस स्कैंडल में सदर ममलिकत की बहन फरियाल तालपुर की जायदाद को भी नहीं बख्शा गया। महकमा रेवेन्यू के अफसरान ने रिश्वत के एवज फरियाल तालपुर के आबाई घर को किसी और के नाम मुंतकिल कर दिया, और जब उन्होंने कौमी असासे जाहिर करने के लिए रिकॉर्ड तलब किया तो पता चला कि वो घर पहले ही किसी दूसरे फर्द के नाम रजिस्टर हो चुका है। वजीर आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम ने इस मामले पर मजीद तहकीकात की तो 29 घरों, कमर्शियल जगहों और दीगर इमलाक के रिकॉर्ड में गड़बड़ के ठोस शवाहिद सामने आए। इस इंकिशाफ के बाद महकमा एंटी करप्शन को फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने और तहकीकात का दायरा वसी करने की हिदायत की गई। आज़ाद नोहड़ियों, सिटी 21। फीसों में इजाफे के खिलाफ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तलबा सरापा एहतजाज बन गए। दरसगाह के मरकजी गेट पर मुजाहिरा अपोजिशन लीडर KMC एडवोकेट सैफुद्दीन ने तलबा का साथ देने का वादा कर लिया। तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में देखिए। फीसों में होशरुबा इजाफा। नॉर्थ नाजाबाद के कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तलबा का शदीद एहतजाज, फीसों में कमी का मुतालबा कर दिया। तलबा का कहना है कि फीसों में 65% इजाफा गैर मुनसिफाना है। ऐसे इकदाम से तालीम आम तलबा की पहुँच से दूर होती जा रही है। एक साल में 165% का इजाफा किया गया है और इसके खिलाफ हमारे एहतजाज है। हमारे यही मुतालबात है कि ये फीसों को कम करा जाए, जो हमारी फीसें हैं वो ली जाएं। इसी के अगर साथ आप देखें, जो भी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फीस 40,000 ली जाती है और हमसे 2,60,000 ली जा रही है। नॉर्मल खानदान से ताल्लुक रखने वाला मिडिल क्लास बच्चा जो है वो मेरिट की सीट पर जो है वो इस तरह की इक्वल एजुकेशन हासिल कर सकता है, जहां दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी, डाव मेडिकल यूनिवर्सिटी, SMC वो भी कराची में ही पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो यहाँ KMDC में कराची का जो इदारा है, यहाँ पर कराची के बच्चों के साथ क्यों नाइंसाफी की जा रही है। यहाँ पे एक मखसूस तबका एडमिशन ले सकता है यहाँ पे, और जो मेरिट पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो सिर्फ एडमिशन और सीट इसलिए छोड़ देते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो हमारे पास मुतालबा ये कि जो फजूल जो लोग फीस इन्होंने इंक्रीज की है वो कम कर दी जाए और जो फैसिलिटीज जिनके लोग पैसे ले रहे हैं वो हमें प्रोवाइड की जाए। एहतजाज में शामिल ऑपोजिशन लीडर KMC एडवोकेट सैफुद्दीन का कहना था कि 1,17,000 से बढ़कर फीस 2,68,000 रुपए कर दी गई। इकदाम नाजायज है। सिंध मेडिकल कॉलेज है, जो लियारी मेडिकल कॉलेज है, जो डॉ मेडिकल कॉलेज है, उससे भी ज्यादा फीसें जो है बढ़ा दी गई हैं और बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है। किसी परसेंटेज के बगैर, किसी जस्टिफिकेशन के बगैर इजाफा किया जा रहा है। जैसा कि अभी बताया गया कि 1,17,000 फीस को 2,68,000 कर दिया गया है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट फीस ली जा रही है जबकि ट्रांसपोर्ट फराहम नहीं की जा रही, लैब फीस ली जा रही है, IT फीस ली जा रही है, डेवलपमेंट चार्जेस फीस ली जा रही है, हालांकि बच्चियों के लिए कोई बैठने की जगह मौजूद नहीं है। तलबा ने मुतालबा किया कि फीसों में इजाफे को फौरी वापस लिया जाए और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन राना जाजेब के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। गवर्नर सिंध का डंपर हादसात में जाँ बहक घर शहरी के अहले खाना को प्लॉट देने का ऐलान। लंदन दौरे पर कत्ल की धमकियां मिलने का इंकशाफ किया। कहा ईमेल में इमरान फारूक तर्ज पर मारने की धमकी दी गई। मुस्तफा आमिर केस में जज के रवैये पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखने का फैसला भी कर लिया। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर सिंध का बजरिया ईमेल जान से मार डालने की संगीन धमकियां मिलने का इंकशाफ। कामरान टिसोरी ने तमाम इदारों को आगाह भी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुश्मनों से डट कर मुकाबले का भी कह दिया। कई दफ़ा थ्रेड्स आ चुकी हैं और इस बार भी जब थ्रेड आई थी मैं उस दिन लंदन के लिए रवाना हो रहा था और तमाम जो मुतकिला इदारे हैं उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया। MS साहब मेरे बैठे, इन्होंने रेंजर्स को भी ख़त लिख दिया है। लेकिन आपने कहा ना कि उसका जवाब और यह सूबे के एक आईनी सरबराह को थ्रेड मिली तो उसके बावजूद वो किसी बंद कमरे में नहीं बैठ गया, ये जवाब है। गवर्नर सिंह ने डंपर हादसात में जाँ बहक हर शहरी के अहले खाना को प्लॉट देने का ऐलान कर दिया और कहा कि इस साल गवर्नर हाउस में 10 लाख अफराद को सहर अफ्तार कराने जा रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन भी गवर्नर हाउस में होगी, जिससे बजरिया कुरानदाजी रोज एक प्लॉट दिया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर हम एक प्लॉट की कुरानदाजी भी करेंगे और वो यहाँ आने वाले जो मुस्तहिक ऐसे लोग होंगे जिनका अपना घर नहीं है वो उस कुरानदाजी में शामिल हों। उसकी टाइमिंग भी आपसे हम शेयर कर लेंगे कि किस टाइम पर वो कुरानदाजी रोज़ाना की जाएगी, जिसमें एक प्लॉट रोज़ाना, तो 30 दिन तक ये कुरानदाजी का अमल जारी और सारी रहेगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस से मुतालिक गवर्नर ने कहा कि केस में अब कई राजों से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। जज के रवैये पर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस को खत लिखने का भी ऐलान कर दिया। कैमरामैन राना जाजेब के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। कारोबार पर बात करते हुए आपको बताएं कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 450 पॉइंट्स बढ़ा। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 75 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। सरमायाकार पुर एतमाद, मुल्की मईशत के लिए भी अच्छी खबर। स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दौरान इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। इंडेक्स एक हफ्ते में बढ़कर 1,13,251 पॉइंट्स पर बंद हुई। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,15,889 रही। हफ्ते में इंडेक्स की कम तरीन सतह 1,11,857 रिकॉर्ड की गई। मार्केट में हफ्ते भर में 120 अरब रुपए मालियत का कारोबार हुआ और 2 अरब 46 करोड़ शेयर्स के सौदे किए गए। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 75 अरब रुपए के इजाफे से 13,980 अरब रुपए हो गई। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.41% रही। दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.10% रही थी। जनवरी 2025 में तरसीलात ज़र 3 अरब डॉलर रही। जनवरी 2024 के मुकाबले में जनवरी 2025 में तरसीलात ज़र में 25% का इजाफा देखने में आया। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये कोर्ट बेसन पर बाअसर शख्स का शहरी के तशद्दुद का केस। पुलिस ने गिरफ्तार 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को जुनूबी की अदालत में पेश कर दिया। केस के तफ्तीशी अफसर की जानिब से वाक़ये की CCTV फुटेज अदालत में पेश कर दी गई। अदालत ने 5 मुल्ज़िमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गैर कानूनी असलाह केस में भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुल्ज़िम अरमगान का एक और मुकदमा मंजर आम पर आ गया। मेरे खिलाफ मुकदमा
بعد میں پیش ہوئے تو جان سے جاؤ گے یا غائب کرا دوں گا۔ ارمغان کے وکیل کو دھمکیاں دینے کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ عدالت نے ملزم ارمغان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سیف ایڈوکیٹ نے دعویٰ کیا کہ ارمغان نے 22 اپریل 2024 کو واٹس ایپ پر میسج کیے۔ ڈمپر سے 3 افراد کو کچل کے ہلاک کرنے کا کیس۔ شرکی کی عدالت نے ڈمپر ڈرائیور سعید کی ضمانت قبل از گرفتاری مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس دفعہ میں دیت سزا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر ذمہ دار ڈرائیور کو لائسنس دے دیا جائے۔ ملینیم مال گلستان جوہر میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے متعلق درخواست، ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست عدم پیروی پر خارج کر دی۔ پسند کی شادی کرنے والا جوڑا تحفظ کے لیے ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے پولیس کو 9 بیاہتا جوڑے کو گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی دے دیا۔